بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بلکہ ہم ان کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ پہنچاتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں گزر گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو اسلامی فتوحات سے برابر ہٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ ہی غلبہ پانے والے ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ۔ کہہ دیجیے کہ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور جو بہرے ہوتے ہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک دھوکہ بھی چھولے تو یوں کہنے لگیں، ہائے کمبختی ہم واقعی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی کا عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق النبی الموعود العظیم۔ آج 18 ذی الحجہ ہے۔ تاریخ اسلامی تاریخ میں کافی مشہور و معروف ہے، اسی لیے کہ آج ہی کی تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو چونکہ موقع کے حساب سے آئیے ان اصحاب کرام کے تذکار میں سے تو صحابی رسول خلیفہ رسول حضرت عثمان بن عفان جامع آیات القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بالکل 3 سے 4 واقعات کے ساتھ آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خلفائے کرام، پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد جو خلیفے نامزد ہوئے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، جن کو ذو النورین کے نام سے یاد کیا گیا، جن کو غنی کے نام سے یاد کیا گیا، جن کو جامع آیات القرآن کے نام سے یاد کیا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگر اپنی 2 چہیتی بیٹیوں کا نکاح آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کو آپ کے عقد نکاح میں ایک کے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا۔ جب ایک کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی کو آپ نے انہی کے نکاح میں دیا۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی غیر شادی شدہ لڑکی نہیں تھی، تبھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اور کوئی بیٹی ہوتی تو پھر سے عثمان غنی کو دیتا۔ تو ان کو ذو النورین کہا گیا، وہ 2 نور والے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نور دیے، ایک ام کلثوم اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 2 خاص بیٹیاں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی چہیتی بیٹیاں تھیں۔ اسلام کے دعوے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کیا تھا، جو بعد میں جا کر بہت بڑا کافر ہوا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکالیف دیے ہیں۔ تو وہ ابو لہب کے 2 بیٹے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے نبوت پیش کیا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر کئی مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا ایک ہی وقت میں طلاق دے دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 بیٹیاں گھر واپس آئی۔ انہی 2 بیٹیوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ام کلثوم یا بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کو
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में लिया। फिर जब एक बेटी का इंतकाल हो गया तो उसके बाद फिर दूसरी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से कराया गया। इसीलिए आपको दुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले, जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो नूर दिए थे, अपनी दो बेटियों का निकाह किया था। वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको गनी कहा गया, बहुत मालदार थे और इतना माल था, उतनी माल से आपको नफरत थी, अल्लाह की राह में निकालते चले आते, इसीलिए आपको उस्मान गनी कहा गया। एक बुढ़िया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई, उसकी बेटी का निकाह था, पैसे नहीं थे, सायल बन के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाई, दस्तक दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि मेरी बेटी का निकाह है और मेरे पास ब्याह करने के लिए कोई पैसा मौजूद नहीं है। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जहानों के सरदार हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाका है। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ दे नहीं सकते थे उस बुढ़िया को। आपने कहा देखो यहाँ से चंद कदम जाना मेरे दामाद का घर उस्मान बिन अफ़्फ़ान का घर है, वहाँ पे जाना, दस्तक देना और सिर्फ कह देना कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे दर पर भेजा है, इतना कह देना तुम्हारा काफी होगा। अब देखिए बुढ़िया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को लिए हुए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर पहुँचती है। दस्तक देने से पहले बुढ़िया आवाज़ सुनती है कि मियाँ और बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी से झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2 पैसे का तेल ज्यादा खर्च किया था और डांट रहे हैं कि तुमने इतनी फजूल खर्ची क्यों की। बिल्कुल मामूली सी बात है, उस वक्त के जो 2 पैसे थे उस पे झगड़ा हो रहा है। बुढ़िया जो साइल बन के आई है, जो सवाल लेके आई है कि ये खैरात करेंगे, माल देंगे, इतना माल देंगे कि उनसे उस माल से बेटी का निकाह हो सकेगा। अब बुढ़िया हैरान हुई कि मैं तो इतना माल लेने के लिए आई हूँ, ये शख्स तो 2 पैसे के लिए अपनी बीवी से लड़ रहा है फजूल खर्ची पे। ये सोचते हुए बड़ी मायूस होकर बगैर दस्तक दिए फिर वापस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती हैं। वो बुढ़िया को आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नाला, अपना गिरिया विदारी बयान करती है कि या रसूलल्लाह आपने तो मुझे उस शख्स के पास भेजा जो 2 पैसों के वास्ते अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़िया क्या तूने उस्मान को दस्तक दी, क्या तुमने ये इत्तला दी कि उसने कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है? तो कहा नहीं या रसूलल्लाह, यूं ही मैं दस्तक देने से पहले ये आवाज़ें झगड़े की सुनी तो मैं वापस लौट के आई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं बुढ़िया जाओ, दस्तक दो और कहो जो मैं कह रहा हूँ। बस बुढ़िया फिर दोबारा गई और इस बार दस्तक दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर नीचे किए हुए, वो जो हया से शर्मसार थे, आप जो है सर नीचे किए हुए दरवाजा खोले और कहा कि माँ बताओ मुझे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बस इतना कहना था। बुढ़िया ने कहा कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, सहाबी रसूल है, खलीफे रसूल है, जो वक्त रोशन हो चुका होता है आप सर नीचे किए हुए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम लिया गया, आप सब कुछ जान गए। बस फौरन घर के अंदर गए और 2 थैलियां अशरफियों की भरी हुई, उस वक्त की दीनार की भरी हुई लाए और कहते हुए दे दिए कि माँ ये लो और जो तुम्हें काम करना है करो, और देखो और अगर कुछ जरूरत हो तो तुम मुझे फिर वापस आकर सवाल करना, मुझसे मांग लेना और मैं तुम्हें दे दूंगा। बुढ़िया हैरान हो गई, अब सवाल करने बगैर जो है हद से ज्यादा दे दिया गया है, काफी ज्यादा मिल गया है। वो खुशी लिए हुए फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और माजरा पेश किया और कहा कि या रसूलल्लाह ताज्जुब होता है कि वो शख्स जो 2 पैसों के वास्ते अपनी बीवी से झगड़ा करता है और आज के नाम पर जो है थैलियां भरी हुई अशरफियां लुटा देता है। तो तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुढ़िया ये उस्मान गनी है, जब अपनी जात पर खर्च करने की बारी आती है तो गिन कर खर्च करते हैं, जब अल्लाह की जात पर खर्च करने की बारी आती है तो इनगिनत खर्च कर देते हैं, बगैर गिने के खर्च करते हैं। ये उस्मान गनी है जिनको माल और दौलत की मोहब्बत नहीं है। तभी तो इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया था कि जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम माल को आप माल से जब नफरत जाहिर करते और माल जमा करने से मना करते तो सहाबा ने सवाल किया कि या मेहदी मौऊद, उस्मान गनी तो मालदार थे, सहाबी रसूल थे, खलीफा रसूल थे, मालदार थे। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ तुम पहले उस्मान जैसे बन जाओ तब माल रखो। मामला मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से भी आपकी तारीफ बयान हुई है। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इतने बाहयात थे, इतने बाशरम थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपने घर में बैठे हुए हैं, सहाबा रसूल बैठे हुए हैं, आप तैबन बांधे हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने के नीचे का हिस्सा मतलब पैर नजर आ रहे हैं, सिर्फ पंजे वगैरह नजर आ रहे हैं। सहाबा आए, हज़रत अबू बकर
सिद्दीक आए, हज़रत उमर फारूक आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला आए, एक के बाद दीगर आए। तो उसके बाद यूं ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों को पूरी तरह से ढांप लिया। सहाबा के पूछने पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान की वो जात है जिनसे फरिश्ते हया करते हैं, जिनसे फरिश्ते शर्म करते हैं, इतने बाहया, इतने बाशरम के आपके पास शर्म का जो गौहर बताया गया है, उसके मदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला थे, जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जिनकी शान में कि उस्मान ऐसे बाहया, ऐसे बाशरम है कि जिनसे फरिश्ते हया करते हैं, फरिश्ते शर्माते हैं उनसे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बहुत मान था। देखिए माल की जो बात आती है, वहाँ पे देखिए हिसाब की भी जब बात आती है, अभी भी आपने कुरान की आयत में पढ़ा था कि अल्लाह जिन का जो कुछ उसने दिया है चुन कर फैसला करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबा, दो खलीफे, और दोनों भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मेरे दोनों दामादों में से एक दामाद को फख्र के साथ आजमा रहा है और एक दामाद को माल देकर आजमा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास फख्र व फाका कुछ नहीं, फाके में फाका होता और आजमाइश होती। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को माल पे माल दिया जा रहा है और आजमाइश हो रही है। वहाँ कुछ ना देकर आजमाया जा रहा है, यहाँ सब कुछ देकर आजमाया जा रहा है। एक मरतबा ये दोनों दामाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे और बाएं जानिब ठहरे हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। इतने में वहाँ पे तपतपाती रेगिस्तान की धूप थी, जो पत्थर थे वो पत्थर जो है गरम हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली इस गरम पत्थर पर ठहर जाओ और सुबह से शाम तक जो कुछ के हुआ है अपना हिसाब दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला गरम पत्थर पर ठहर गए और फौरन सुबह से शाम तक जो कुछ के हुआ था, क्योंकि आपके पास हमेशा फख्र फाका हुआ करता था, आपके पास कुछ था ही नहीं हिसाब देने के लिए। आपने मिनट 2 मिनट में अपना जल्दी से हिसाब बयान कर दिया कि अल्लाह ने कुछ दिया नहीं, जो कुछ के था ये काम हुआ, और आप उस पत्थर से उतर गए। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को कहा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान इस पत्थर पर ठहर जाओ और जो कुछ सुबह से शाम तक हुआ है अपना हिसाब बयान करो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला सुबह का अपना हिसाब शुरू करते हैं कि इतना माल आया, इतना माल खर्च हुआ, इतना बूंद आया, इतना निकाला गया, इतनी तिजारत हुई, इतने ताजिर आए, इतना मुनाफा हुआ, इतना नुकसान हुआ, अभी आधा भी हिसाब पूरा नहीं हुआ था कि वो पत्थर जो है इतना पिघल रहा था धूप से, गर्मी से। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला पसीना हो गए और अपना आधा हिसाब बयान करने से पहले आप वहाँ से हट गए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान जितना माल होगा उतना ज्यादा हिसाब होगा। आपने मिसाल दी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे कि जिसके पास जितना माल दिया जाएगा, जितना दिया जाएगा उसका हिसाब उतना लंबा होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ये नहीं, ये सिर्फ मिसाल है पूरे उम्मत मुस्लिमीन के वास्ते कि अगर कम हिसाब होगा, कम माल होगा तो आपका हिसाब जल्दी से होगा और जल्दी उस शख्स उतर जाएगा। हिसाब से वक्त लेकिन आजमाइश उसी तरह की होगी, यानी गरम जिस तरह पर पत्थर पर ठहरे हुए हैं वो आपका आजमाइश का वक्त होगा जब आपका हिसाब होगा। लेकिन इसके पास कम माल होगा, उसकी आजमाइश कम होगी, जल्दी से उसका हिसाब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पास माल ज्यादा होगा, उसके दिन के का हिसाब दिया जाएगा कि उसने दिन का कहाँ पे खर्च किया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये बात सुनी तो आप लरज़ गए, सारे का सारा माल आपने उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह की राह में निकाल दिया। लेकिन अल्लाह ने आपको गनी बनाया था, इधर आप निकालते और उधर बरकत हो जाती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सहाबी थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के बाद और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के बाद आपका दौर आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान है उम्मत मुस्लिमीन पर, इस खलीफतुल मुस्लिमीन का तमाम उम्मत पर एहसान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ के कुरान मजीद नाजिल हुआ था वो जो है और आँख में अलग अलग पत्तों पे, किसी के पास कुछ सूरतें, किसी के पास कुछ सूरतें, किसी के पास कुछ शक्ल में कुरान मौजूद था, किसी के पास कुछ कुरान में कुछ शक्ल में कुरान मौजूद था। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की है, इसका वादा किया है। तो जब हुकूमत फैलने लगी, इस्लाम फैलने लगा, अलग अलग ममालिक में इस्लाम चले गया, तो इस्लाम के जो है नुस्खे जो है अलग अलग जगह पे कुछ इख्तिलाफात के साथ अलग अलग रौनुमा हुए। जब ये वाक़या बढ़ने लगा, ये इख्तिलाफात की शिद्दत बढ़ने लगी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का एहसान है कि आपने वो तमाम नुस्खों को कुरान मजीद के जो अलग अलग बिखरे हुए थे, आपने तमाम ममालिक से एक जगह जमा किए और तमाम कुरान मजीद को आपने जमा किया। अब जिस तरह की शक्ल में मिल
फातिहा, फिर सूरह बकरा और आखिर में सूरह मन्नास, ये आपने जमा किया है, इसको जमा किया और उसके बाद आपने तमाम जो दूसरे नुस्खे थे वो सारों को आपने जला दिया और उसके बाद यही कुरान मजीद वहां से आगे बढ़ा है। तो अल्लाह ने जो इबादत का जो जिम्मा लिया था वो आप ही के जरिए अल्लाह ने उसको जामे किया और उसी के बाद ये नुस्खा आम हुआ। इसीलिए आपको जामे कुरान कहते हैं वो शख्स जिसने कुरान को जमा किया, जिसने कुरान की इबादत की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यही दौर था जहाँ पे मुनाफिकीन शिद्दत से बढ़ रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बाद जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर बड़ा तारीख दौर रहा है। मुनाफिकीन और मुर्तदीन ने इस शिद्दत से निफाक डाला था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के दौर में ये दोनों असहाब को बराबर तरीके से ये लोग काम करने नहीं दिए हैं। इन्होंने इतनी मुनाफिकी की कि वो मुसलमान थे, निफाक इतना फैलाया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करने वाले खुद मुसलमान थे। सहाबा के फर्जंदा वहाँ पे शामिल थे, माज़अल्लाह कहना नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ इतना बढ़ चुका था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को मिस्र से कुछ लोग आए और यहाँ मदीने वालों से मिलके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का कत्ल कर दिया गया। आपकी शहादत वाक़ई हुई है 35 हिजरी थी जब आपकी शहादत वाक़ई हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के सदक़े में हम तमाम को ईमान अता करें। आमीन।